So welcome back. This is lecture 6 of cost accounting and cost and management accounting. And the chapter which we are doing is marginal costing. This is the common part which we are doing from both cost and management accounting and cost accounting. Okay. And this is for CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, तो marginal costing lecture 6 है. तो हमारा agenda जो है आज का is complete revision of what we have done in the first 5 lectures. और ये first 5 lectures है, बीच में कुछ theories हमने छोड़े थे, advantages and all that. We will cover that as well. ठीक है, so चलिए, so let's see. So now सबसे पहले what we had seen is the definition of marginal cost. ठीक है, so what is marginal cost? The amount at any given volume of output. ठीक है, तो एक ऐसा amount है by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. तो इसका मतलब क्या, ये बोल ये रहा है कि अगर आपका cost of producing 100 items is 1000, ठीक है, when you produce a 101st item, ठीक है, तो cost मान लीजिए आपका 105 हो रहा है. So difference between these two is your marginal cost. यही बात ये ऊपर वाला definition बोल रहा है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, amount at any given volume of output. ठीक है, तो ये है amount. ठीक है, जो ये है amount जो change हो रहा है, amount at any given level of output by which aggregate costs are changed. aggregate cost क्या है, इसका 1005 है, इसका 1000 है, इसमें change कितना है, 5. So amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed. ठीक है, if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. So basically हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया by 1 यूनिट. ठीक है, या आप दूसरे एंगल से भी देखो, 101 से आप 100 में जाओ तो आप बोलेंगे डिक्रीज by 1 यूनिट. ओके, इन बोथ केसेस डिफरेंस विल बी 1. तो ये है आपका, दिस इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली. ठीक है, सो हमने देखे कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर द सेम. हमारे स्टडी के लिए मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द सेम. ओके, तो यहाँ पे ये भी देखे हमने, मार्जिनल कॉस्ट आल्सो मींस प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स. ठीक है, तो सारे जो इसमें कॉस्ट को भी क्लासिफाई बिहेवियरली, ठीक है, सो बिहेवियर यानी कौन सा कॉस्ट है जो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड. कॉस्ट which doesn't change with volume is fixed, which changes with volume is variable. Okay, so यहाँ पे कॉस्ट का बिहेवियर के हिसाब से we label it. यही डिफरेंस है. जब ट्रेडिशनली जो कॉस्ट ये देखते हैं, ट्रेडिशनली व्हाट वी सी, ये देखते हैं कि कॉस्ट कहाँ इनकर हुआ है. सो फैक्ट्री को बीच का पार्ट माना जाता है, और इट इज प्री फैक्ट्री और इट इज पोस्ट फैक्ट्री. ये हम देखते हैं. प्री फैक्ट्री यानी मटेरियल लेबर, ठीक है, और इन फैक्ट्री यानी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रहा है, दैट इज इन फैक्ट्री. ओके, एंड देन पोस्ट फैक्ट्री इज योर ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड ट्रेडिशनली. ठीक है, ओके, सो सेम इज द क्वेश्चन ऑफ direct and indirect cost. Okay, so direct cost is that cost which is directly used to make that product. Indirect cost is that cost which is not directly being used to make the product. Say somebody is sitting in an office, okay, and answering customers. So is the salary of that person directly affecting any unit which you are producing? No. So it's called as indirect cost. Okay, so that is it. So material, labor, or any tool in the factory which is directly being used to produce a product, all those are direct costs. Okay, so that is the classification of direct and indirect. So remember, variable and fixed, that classification is not the same as direct and indirect. Okay,
direct and indirect और वेरिएबल और फिक्स्ड आर नॉट द सेम, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूं आपको, आई कैन से दैट वेरिएबल एंड फिक्स्ड इज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये है कंप्लीट बिहेवियर से। अब वेरिएबल जो कॉस्ट है, इस वेरिएबल में डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट का भी कुछ पार्ट हो सकता है, ओके। अब ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड में डायरेक्ट का भी कुछ पार्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट का भी हो सकता है। So basically what I am saying is variable and fixed, this classification is different than the classification of direct and indirect. हम what we are concerned with here, variable and fixed, ठीक है। So चलो ये हो गया। और marginal cost is a constant ratio. This is just a definition, आपको ये retain भी नहीं करता मैं, I've just retained it for objective type questions, this sentence, okay। ये बस याद रखना है, it is a constant ratio which may be expressed in terms of amount per unit of output, ठीक है, ओके। तो ये जो है marginal cost is 5 rupees, ओके, 5 rupees for 1 unit में बोलेंगे। हम marginal cost is 5 unit for 1 unit, कैसे 101 minus 100 is 1 unit, ठीक है। so it is amount per unit of output, ठीक है। constant ratio, तो sometimes ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसा आ जाता है, ओके। जस्ट रिमेंबर देना, आप लोग सोचोगे व्हाट इज दिस कांस्टेंट रेशियो और समथिंग, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट हियर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे वी नो फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉर्मली नॉट ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। जो फिक्स्ड कॉस्ट को आप नॉर्मली हर यूनिट के साथ ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। बट देयर आर पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल ऑल्सो, ठीक है। तो आप ट्रेस कर सकते हो, लेकिन वो हर यूनिट के साथ चेंज नहीं होगा। यू कैन ट्रेस इट टू अ कॉस्ट यूनिट बट इट विल नॉट चेंज अलोंग विद ईच प्रोडक्शन, ठीक है। चलो देन फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी आपका जो रेंट हो गया, all these things, salaries, all these are kind of fixed costs, ठीक है। ये आपको पर अकाउंटिंग पीरियड इट विल नॉट चेंज, ठीक है, फिक्स्ड रहेगा, ओके। और फिक्स्ड कॉस्ट के देयर आर अदर नेम्स which are called time cost, ठीक है। For objective types these synonyms are very important, always remember, okay। So fixed cost is also called time cost, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रहता है, नॉर्मली महीने का रेंट होता है, साल का होता है, ओके। इट्स कॉल्ड टाइम कॉस्ट। टाइम एंड पीरियड कॉस्ट इज सेम, ओके, ठीक है। इसको कभी कभी स्टैंड बाय कॉस्ट भी बोला जाता है, ओके। एंड कैपेसिटी कॉस्ट भी बोला जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। एंड कांस्टेंट कॉस्ट इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। दीज आर वेरियस नेम्स। नाउ जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट के नेम्स देखे, variable cost and marginal cost are the same, okay, also termed as direct cost, activity cost, volume cost or out of pocket cost. Remember यहाँ पे जो variable cost के whatever synonyms we are seeing, ठीक है, ये तो ठीक है, these two, but the others are not 100% same, it is not exactly the same. ये synonyms नहीं है but it is mostly the same. ये सारी चीजें है ना, they are used in different cases, okay. Mostly they refer to your variable cost, but exactly it is not the same as variable cost, okay, but it is used interchangeably, ठीक है। अब ना ये पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि for an economist marginal cost and variable cost will be different, but for accountant it will be same, ठीक है। so accountant में it will be same, क्यों same है we have seen, ठीक है। आपको at any activity level, you go to any activity level, आप say 200th unit minus 201 करेंगे, so you will get variable cost only always, ठीक है। so which is why for an accountant both variable and marginal cost are same, but for economist what economist will see is, क्यों उसके लिए different है, actually speaking आपको क्या लगता है, अगर 100 units है, if I've got 100 units, ठीक है, so 1 2 3 4 5 and so on, okay. Do you really think in reality
my cost when I produce this first unit, say my cost, will it be exactly equal to the cost of producing my fifth unit? नहीं होता, right? It will not be like that actually. हो सकता है there will be some inefficiency here, यहाँ पे ज्यादा inefficiency हो सकता है. So when you speak in the technical manner, you cannot always say that variable cost of one unit is exactly the same as the variable cost for fixed unit, because there can be some differences. थोड़ा बहुत there can be some efficiencies, inefficiencies of production or something. Okay, ऐसा हो सकता है कि in the first unit the machine was at its best, then slowly यहाँ पे machine उतने best में नहीं है. Okay, और just instead of fifth आप 5000 unit ले लीजिए. At 5000 unit machine थोड़ा सा wear out हो जाएगा आपका, machine would be worn out. Okay, so economist के point of view से economist will see the technical definition. So for economist जो है ये दोनों same हर बार same होगा, it is not essential. Okay, for an accountant it is the same. ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम overall जो है we see it from an overall point of view. Accountant जो overall point of view लेगा, ठीक है, but economist will see all एक conditions देखेगा. ठीक है, so which is why it is said that for economist it is not the same. ठीक है, इस पे हमने थोड़ा सा टाइम इसलिए दिए कि आपको बस याद रखे, if you get an MCQ, for economist it is different, marginal cost is not equal to variable cost, but for accountant like for us it is the same. ठीक है, हमारे लिए वो same, हम बोलेंगे कि cost of one unit is actually the same. ठीक है, cost of producing one additional unit will always be the same is what accountant will say. ठीक है, अब मैंने बोला था आपको, then we had seen CIMA definition. CIMA is what? Chartered Institute of Management Accountants London. ओके, ये सबसे वेल नोन बॉडी है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का, और इसी का डेफिनेशन वी यूज. ओके, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, CIMA लंदन. ठीक है, so ये CIMA is nothing but it is the flag bearer हमारे of our profession. CIMA is the flag bearer. ठीक है, maximum number of researches and all have been done by CIMA. Okay, and that's why we quote them for many things. Okay, so चलो, इसलिए how has CIMA defined marginal costing? CIMA is saying the ascertainment of marginal costs. ठीक है, what is marginal costing? First is marginal cost पहचानना, ascertainment of marginal costs and of the effect on profit. Profit पे effect study करना, किसका effect on of profit on changes in volume. ठीक है, यानी जैसे volume आपका बढ़ रहा है घट रहा है, what is the effect on profit. ठीक है, on of changes in volume or type of output. आपका output को आप mix को if you are changing it, then how your profit is changing. ठीक है, तो ये the ascertainment of marginal costs in these situations. Changes in volume, a type of output, this is which is called product mix. ठीक है, how do you find this out? By differentiating between fixed and variable cost. This is nothing but your marginal. This is the definition of marginal costing. ठीक है, तो ये हमने किए थे, and then we had talked about variable costs are directly charged to operations, processes and product, leaving all indirect costs to be written off against profit. So fixed cost को here, so this is not definition. Definition यहाँ end हो जाता है आपको ये. This is the definition, see in inverted commas. ठीक है, it ends here. नीचे is just a general explanation. So this is just a general explanation, याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ. Now all indirect costs are not fixed. ठीक है, तो यहाँ पे just they have assumed that चलो variable cost एक from a general point of view they are saying कि in other words इसका ऐसा बोल सकते हैं कि most of the variable costs are directly charged to operations. ठीक है, and most of the fixed costs are indirect costs, ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके, ठीक है, लेकिन 100% indirect costs are not fixed costs. ठीक है,
कुछ indirect costs are variable also. Okay, so variable costs are charged to cost units. ठीक है, variable costs directly cost units को charge कर देते हैं, and fixed costs are written off in full against contribution. ठीक है, तो यानी जब हमारा सेल्स के ऊपर हम किसको चार्ज करते हैं, V को, so S minus V gives us C. ठीक है, और देन फिक्स्ड कॉस्ट को इन टोटल, तो फिक्स्ड कॉस्ट को आप एक एक यूनिट के साथ यू डोंट एसोसिएट इट, इन टोटल आप चार्ज कर देते हैं कंट्रीब्यूशन से. बट वेरिएबल कॉस्ट का you put each unit of sales and compare it with its unit of variable cost. ठीक है, और आपको so you get each unit of contribution actually, but in fixed cost you are getting only total fixed cost. You can derive it later on, you can divide it by unit and say this much is the fixed unit, fixed per unit. Okay, but जब आप कंपेयर कर रहे हो कॉस्ट को, तो पूरे फिक्स्ड कॉस्ट को पूरे कंट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं. Okay, so basically there is no attempt to identify fixed cost with each unit of production. ठीक है, its special value is in decision making. इसमें हमने ये देखा था डायरेक्ट कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, कंपैरेटिव कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, ऑल दीज आर सिनोनिमस विद मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, यहाँ पे भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दीज आर, जैसे इसमें से नॉट ऑल टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम बट लार्जली सेम. ठीक है, इसमें ये याद रखना है आपको. ओके ओके, ये हो गया हमारा. तो एसेंशियल फीचर क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का, डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. इसी के कारण मार्जिनल कॉस्ट बना है. ओके, दिस इज द एसेंशियल फीचर. और ये सब तो हमको मालूम है. वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ प्रोडक्शन, ये दैट वी नो. ठीक है, तो हमने एक मॉडल एग्जांपल लिया था, राइट. सो व्हाट वाज आवर मॉडल एग्जांपल? दिस वाज आवर मॉडल एग्जांपल. ठीक है, ये हमने लिया था वेयर वी सेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेलर. ठीक है, इसका टेलर्स यहाँ पे टॉकिंग अबाउट अ शॉप ऑफ अ टेलर. His selling price per unit is 50, and his material and labor which he pays for stitching one shirt, that total is 20. ठीक है, his variable cost is 20 basically, right? And his fixed cost, that is, let us say, his rent of shop. So in this case, like for a tailor, आपका variable cost काफी यानी लिमिटेड रहेंगे, राइट. फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो विल बी लिमिटेड. जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है उतने टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएंगे, उतने टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे. ओके, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ही विल हैव लिमिटेड थिंग्स. ओके, यहाँ इसका फिक्स्ड कॉस्ट विल बी रेंट ऑफ शॉप. ओके, बस वो आपका हो गया 200. सो नाउ अज्यूमिंग दैट ही स्टिचेस 10 यूनिट्स इन अ मंथ, तो उसका अब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी हिज total sales. So यहाँ पे this is your marginal cost statement. S minus V is equals to contribution. Sales minus variable cost is equals to contribution less fixed cost is equals to profit. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर यूनिट पार्ट, ये हो गया हमारा टोटल पार्ट. यूनिट्स यहाँ पे 10 है आपके. ओके, तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये 500 कैसा है, 50 into 10. ठीक है, how did we get 500? Multiply 50 by 10. ठीक है, this is what how we got 500. Multiply 20 by 10 and you will get variable cost. Okay, and then 500 minus 200 gives you contribution 300. इसमें देखिए यहाँ fixed cost will be written off in full against contribution. 300 minus 20 will give you profit of 100. ठीक है, तो यहाँ पे बस इस साइड में हमने क्या किए, तो जस्ट पुट 11th यूनिट. अगर एक और यूनिट भी वो स्टिच करता है तो व्हाट विल बी द पोजीशन. ठीक है, दिस बिकम्स 550, दिस बिकम्स 220, दिस बिकम्स 330. अब यहाँ देखना आपको फिक्स्ड कॉस्ट डजंट चेंज, करेक्ट. उसने अगर 10 यूनिट बनाया या 25 बनाया महीने में, he will have to pay the same rent. Okay, whether he makes 10 units or 15 units, he will have to pay the same rent. ठीक है, so this basically was our model problem. ये प्रॉब्लम को हम यूज करेंगे
whenever we have to अलग अलग चीजों में whenever we have to discuss any concept, we'll just take the same example. ठीक है? So ठीक है, variable cost vary with volume of production, fixed cost remain unchanged. That's what we saw there now. Okay? और यहाँ पे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, करेक्ट? ये बहुत पूछा जाता है. ओके, they ask this again because it's confusing. The sentences are confusing. Okay, unit variable cost remains same. ठीक है? And total variable cost changes. Total will change with increase in units, correct? और fixed cost में क्या रहेगा? Total fixed cost will remain the same and unit fixed cost will change. ठीक है? Okay, remember. Total fixed cost remain the same. Per unit fixed cost has inverse relation with volume. तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स वगैरह चेंज कर देते हैं just to confuse you. इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? विथ वॉल्यूम. जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट घटते जाता है ना. और 2 यूनिट्स जो रहेगा 4 यूनिट्स के लिए उससे कम रहेगा, 6 यूनिट्स के लिए उससे कम रहेगा पर यूनिट, राइट? सो दैट्स व्हाट ये बोलता है. ठीक है? ओके, ये हमारा दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग. वो क्या है करके ये. इसमें एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज? इसके बाद हम फीचर्स वगैरह ये देखेंगे, फीचर्स एडवांटेजेस एंड ऑल विल सी क्विकली. से मैंने बोला कि इसमें से आपको कुछ पॉइंट उस माइंड में फिक्स करना है. यू हैव टू फिक्स सम पॉइंट्स इन योर माइंड कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी एबल टू राइट दोस 4 पॉइंट्स. वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है? और कई चीजों में आपके फीचर्स एडवांटेजेस ये सब यू कैन यूज इंटरचेंजेबली. एक चीज प्रिपेयर कर लिए, सेम थिंग यू कैन राइट फॉर द अदर थिंग. फीचर्स एडवांटेजेस मेरिट्स ये सब ऑलमोस्ट एक ही हो जाते हैं. ओके, सो एनी क्वेश्चन, बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें? चलो, नाउ विल सी फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. तो जो हमने अभी पढ़ा है ना वही चीज, डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल बाय पिकिंग आउट वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. आल्सो सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट होते हैं जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है. ठीक है? टोटली इट इज वन कॉस्ट. ठीक है? बट सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल इन दैट, तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल. सो अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होता है मार्जिनल के लिए आपको या तो आइदर इट शुड बी फिक्स्ड और वेरिएबल. सो सेमी वेरिएबल को हमको सेपरेट करना पड़ता है. फिक्स्ड पार्ट को फिक्स्ड में डालते हैं, वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल में डालते हैं. ओके, सो फीचर्स क्या? डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. इतना भी लिखेंगे तो इनफ है. ओके, डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स सच एज फिनिश्ड गुड्स WIP और इन वर्क इन प्रोग्रेस एट वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स हैपेंस एट वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है? हमारा जो नॉर्मल कॉस्टिंग मेथड फाइनेंशियल कॉस्टिंग में यूज करते हैं ऑल दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दैट आल्सो, नॉट टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पर डिस्कशन. ओके, तो उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यू यूज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर वैल्यूइंग फिनिश्ड कॉस्ट. है ना? आप कैसे करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कॉस्ट को कैसे आप वैल्यू करते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट आपका आता है, उसमें फिक्स्ड भी रहता है, वेरिएबल भी रहता है. यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, पर यूनिट मिलता है, राइट? बेस्ड ऑन दैट हम उसका वैल्यू निकालते हैं, राइट? इन दैट इज कॉल्ड, दैट इज जो फाइनेंशियल में आप करते हैं उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट टाइप ऑफ कॉस्टिंग. ओके, तो उसकी बात करेंगे अभी, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थोड़ा, बट वन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल. Now fixed costs are written off soon after they are incurred. पूरा write off कर देते हैं contribution से, and do not find a place in product cost. तो fixed cost को उसमें write off कर देते हैं और आपके product cost में fixed cost को use नहीं करते. Okay, for product cost मतलब आपका जो per unit cost है, in that we don't use fixed cost का कोई part नहीं आता उसमें, only variable cost का आता है. In marginal costing, okay, in marginal costing only you value stocks using variable cost. ठीक है? वो इसका peculiarity. Prices are based on, so marginal costing से हमने थोड़े problems भी आपने देखे है ना. तो prices, तो what do we focus on? The sales minus variable cost is equals to contribution. ठीक है? That is the part by which वो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके ऊपर से whole thing is found out, right?
So prices are based on marginal cost and marginal contribution. It combines the techniques of cost recording and cost reporting. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए मार्जिनल कॉस्ट का जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ किया क्या गया है, जो ऑलरेडी जो कॉस्ट है आपको उसको आपने रीराइट किया इन अनदर वे, राइट, बिहेवियर दिखने के लिए कॉस्ट का. सो व्हेन यू रीराइट इट, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग. आगे वाले पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए यू आर चेंजिंग द वे इट इज रिटन. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिपोर्टिंग. ठीक है, प्लस उसमें जो मेन कॉस्ट वगैरह तो आप नोट करते ही हो इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम. सो इट इज कॉस्ट रिकॉर्डिंग प्लस कॉस्ट रिपोर्टिंग, इसीलिए ऐसा बोला जाता है, कंबाइंस द टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, इसमें से कुछ भी आप एनी 4 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो. एडवांटेजेस में जाएंगे तो एनीवे यू कैन यूज फीचर्स आल्सो, एंड देयर आर सम अदर पॉइंट्स. फीचर्स में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो दैट कैन बी एडवांटेजेस. और सिंपल टू ऑपरेट देन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. सो अब्जॉर्प्शन हम देखेंगे, आपको पता चलेगा, एज नो नीड ऑफ ओवरहेड अपॉर्शनमेंट एंड रिकवरी. ठीक है, सो ओवरहेड अपॉर्शनमेंट क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा. ठीक, व्हाट इज ओवरहेड अपॉर्शनमेंट. ओके, शॉर्ट में जैसे मैं आपको बताता हूँ करते क्या है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से. आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, सो जो इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड. ठीक है, so in fixed overhead what they do is, suppose आपका 1000 is your fixed overhead. ठीक है, so they will see normal units of production कितने हैं. if normal units is 100, तो ये बोलते हैं fixed overhead per unit is 1000 upon 100, 10 per unit. अब 10 per unit मानते हैं क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि when different products come, ठीक है, आपको ये ओवरहेड जो है उनको चार्ज करना पड़ता है. they have to charge this overhead to production in absorption costing. as I said, फिक्स्ड को भी वो प्रोडक्ट कॉस्ट में they consider, right. इसलिए अगर आप आज टोटल यूनिट्स, if my total units are 500, ठीक है, total units are 500, but today 20 units have been produced. Today 20 units have been produced. तो 20 को into 10 करके इसका ओवरहेड का कॉस्ट निकालना पड़ता है आज के आज ही, when this is produced. ठीक है, because different units are produced on different days, उसका ये 10 पर यूनिट के हिसाब से आप निकाल लेते हो कॉस्ट ओवरहेड जो है. ठीक है, इसमें होता है बिकॉज यहाँ पे यू हैव अज्यूम्ड नॉर्मल यूनिट्स एज 100. ठीक है, here you have assumed normal units as 100. ठीक है, तब यहाँ पे मैंने 500 बोला है ना, तो ये 500 नहीं होगा. तो बेसिकली क्या होता है ना कि चलिए ठीक है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बस बता देता हूँ, देन विल टॉक अबाउट इट अगेन जब हम इसकी बात करेंगे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे. तो होता क्या है एक्चुअली, तो ये 500 नहीं, देखिए आपका योर नॉर्मल यूनिट्स इज 100. ठीक है, अब यहाँ पे इसके हिसाब से मेरा 10 हो गया. ठीक है, तो अब नॉर्मल यूनिट्स इज 100, तो मान लीजिए इन दी एंड आपको 120 यूनिट्स आप बनाने वाले हो टोटल महीने का. ठीक है, तो चलो ठीक, 500 भी बोल सकते थे, देयर वोंट बी उतना बड़ा डिविएशन नहीं होगा. 120 आपने अगर बना दिए, 120 में से 20 आज बनाए, तो 20 into 100 इज व्हाट यू विल डू फॉर टुडे. ठीक है, अब ये 120 हो गया, तो इन दी एंड क्या होगा, the price will be more than 1000, right. total will be 120 into 10 हो जाएगा. जब आप पूरा you will charge it fully, it will become 120 into 10, so 200 ज्यादा हो गया. that is called over absorption of fixed overhead. तो मैं यहाँ पे आपको देखिए उतना अच्छे से नहीं बता रहा हूँ इसमें, I will show it with a proper diagram और flow कि कैसे होता है करके. या मैं सिर्फ इसमें हम यहाँ बात की ओवरहेड अपॉर्शनमेंट की, मैं मतलब कि आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट इट इज. सो अपॉर्शनमेंट इसको बोलते हैं कि नॉर्मल यूनिट्स लेते हैं, यू टेक फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल, जैसे 10,000 है, तो आपका पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड निकाल देते हैं. ये रेट है आपका. तो जितने जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते रहते हैं ये रेट अप्लाई होता है.
बट होता ये कि इन द एंड ये तो नॉर्मल आपने अज्यूम किया 100, बट एक्चुअल एट द एंड ऑफ द मंथ इट कैन बी 110, इट कैन बी 90, वेरिएंस हो सकता है। तो इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स या तो ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो कम चार्ज हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ओवर अब्जॉर्प्शन एंड अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम व्हेन वी टॉक अबाउट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दिस। नेक्स्ट क्लास में नॉट दिस वन, द नेक्स्ट टुमारोज क्लास रहता। ठीक है, कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो सिंपल टू ऑपरेट, देन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नो नीड ऑफ ओवरहेड अपॉर्शनमेंट एंड रिकवरी। फिर ये जो मैंने बताया आपको, ये यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इन मार्जिनल कॉस्टिंग यू डोंट नीड टू डू इट। नो नीड टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन जो होता है, इससे प्रॉफिट ऑल्सो चेंजेस, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू मैनेजमेंट कि ऐसा ऐसा हो गया था ये। सो ऑल वो जो problems are not there in marginal costing. Okay, you don't have to explain that to management. Decision making is easier as marginal costing shows products making a contribution and products failing to cover their variable costs. So clearly हमको पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहा है उसको दैट यू हैव टू स्टॉप, एंड विच आर द प्रोडक्ट्स विच आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू द टोटल, वो सब it is displayed very nicely in marginal costing. Is essentially useful to management as a technique of cost analysis and cost presentation. ठीक है, therefore it's an important technique of cost control. Future profit planning है ना, we do profit sales at desired profit, profit at desired sales. ठीक है, ये दो चीज मेरे बोल, ये दोनों का एक एक पॉइंट आप बना सकते हो। फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग कैन बी डन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट को छोड़ दो, इतना लंबे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। ओके, सो नो नीड टू राइट वेरी बिग पॉइंट्स, राइट इन शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ व्हेन अ बिजनेस कंसर्न कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल यूनिट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन अगर व्हेन देयर आर डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, या आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, देन इट इज इजी टू do a comparative analysis how each of the product is performing. ठीक है, सबका हम एक साथ रख के देख सकते हैं। It is helpful in forecasting, क्योंकि forecasting में डायरेक्टली हम बोल सकते थे इतना यूनिट्स हुए तो कितना बढ़ जाएगा। It gives a very direct relation. Okay, so helps in forecasting also. ठीक है, ये सब समझ गया। और ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ये ना, आपके मेरे पास जैसे आई हैव गॉट 3-4 प्रोडक्ट्स A B C D, ठीक है, and totally I can make 100 units, that is my capacity. ठीक है, now how much should I make each so that I get the highest profit? So that is called optimum product mix. ठीक है, so optimum product mix की जैसे optimum sales mix, है ना, किसको कितना बेचना है। The same thing if you look from a sales point of view, it becomes optimum sales mix. Apart from this, you have many decisions which are made, so we will have problems. ये सारे type of division के, for all these decisions we will have problems, कोई ना कोई problem रहेगा which will fall in one of these. ठीक है, so क्या क्या है, make or buy decisions, exploring foreign markets, ठीक है, क्या foreign market में बेचना चाहिए कि नहीं, okay, accepting an order or not, ये सब के problems रहेंगे हमको. So practically you will be able to see how marginal costing is helping in all this. Determination of selling price in different conditions, replace one product with another product, optimum utilization of labor or machine hours, evaluation of alternative choices, subcontracting, okay, expand the business or not, diversification, okay, shut down or continue. ये सब different decisions है. We will be seeing problems of all these, इसलिए मैं I'm not individually discussing these points. ठीक है, क्योंकि सबके हम कोई ना कोई problems करेंगे, जब जब करेंगे I will tell you that we saw this in advantages. ठीक है, ये हो गया आपका advantages. अब limitations को आपको advantages मालूम है तो you can उसी में से आप limitations निकाल सकते हैं. No variable cost is completely variable or fixed is completely fixed. So segregation is difficult. ठीक है,
stock of finished goods and work in progress are understated as fixed costs are excluded from cost. यानी ये बोल रहा है कि आप cost per unit में you are not including fixed cost, so you are kind of understating the real cost. Fixed cost is also a cost, right? तो आप उसको exclude करके per unit को you are understating it. ठीक है? Exclusion of fixed overheads from inventories affects the P&L and balance sheet. ठीक है, उसको आपको correction करना पड़ेगा, right? So otherwise your balance sheet will be falsified. So while preparing, if you are using marginal costing system, while preparing P&L and balance sheet, you'll have to make that corrections. Sales are seasonal. जब seasonal sales है, यानी मेरा February में बहुत sales होता है, May में बहुत होता है. If I see monthly statements, वो बहुत ही खराब दिखेगा, right? It will look really bad with marginal costing, right? So when sales are seasonal, profit fluctuate from period to period. Hence, monthly operating statement are not realistic in marginal costing. ठीक है? So absorption cost costing में it is better रहता है क्योंकि थोड़ा fixed cost is spread, but marginal costing थोड़ा abrupt दिखता है. Okay? Then during early stages of recession, अगर recession हो रहा है, recession में क्या होता है, थोड़ा sales गिर जाता है. मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, अरे गिर गया, तो मैनेजमेंट वगैरह सब हिल जाएंगे और अरे क्या करना है. सो ओके, सो लो प्रॉफिट्स और इंक्रीज इन लॉसेस विल बी रिवील्ड इन अ मैग्निफाइड वे, मे क्रिएट अनड्यू पैनिक. ठीक है, अनड्यूली इट विल क्रिएट पैनिक. ठीक है, and then increased production or sales may be due to extensive use of तो सारा sales units बढ़ रहा है करके value बढ़ेगा ऐसा नहीं है. Okay, many times आपका production process becomes more efficient, इसीलिए भी profit बढ़ता है. It's not always because of your sales and variable cost, वो interactions ही होता है ऐसा नहीं है. Okay, there are other physical things which also contribute. Marginal costing fails to reveal this. Okay, for short-term profitability, marginal cost is useful. Okay, but for long-term profit planning, आपको you have to do it in absorption basis only. You आपको सारे cost दिखाना पड़ता है. You have to show the entire costs. So now we will get back, start at 6:15. Okay, 6:15. Please